नहीं बैठो चलो तुम जल्दी चलो अंकल जी here compound microscope it is used to see the for the tiny objects and the large image is formed of the tiny objects. Microscope it consists the two lens, objective lens and the eye lens. Objective piece and eye piece भी कहते हैं. इसका डायग्राम देखना. ये objective piece it is short focal length, it is small aperture and small focal length. Here when object is placed beyond focus, image is formed. Here you see it is AB object is placed, image is formed at this here आवाज एकदम आवाज here image AB object is placed here the image is formed some larger image will be formed actually इससे थोड़ी सी image बड़ी बनेगी A dash, B dash, image is formed. Here, objective lens, either here eye lens, here ये इमेज बन जाएगी at the least distance of distinct vision. It is the least distance of distinct vision. ये तो इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये आई पीस है एंड here it is UE. We will consider it is UE. This distance is UE. Clear?
angle formed. Suppose this angle, image angle made at the eye is beta, and here we will assume the object at the least distance of distinct vision. Means here final image is far at the least distance of distinct vision. So here we will assume this is alpha. Here this is the same height as the object. We will assume it is AB. So it is we will write as it is A B. This is B dash, B double dash, A double dash. Here we can consider as it is A triple dash, B dash. This is your final image. So if I note down construction, ये पहले लिख चुके हो, it is an optical instrument which is used to see which is used for making the magnified images of the tiny objects. मतलब ये सिंपल सी बात है, which is used to form the magnified images of the tiny objects. छोटे ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाने के काम में आता है. And it construction क्या है इसका? It consists objective piece and the eyepiece. Objective piece is small aperture and small focal length. लिखो समझा कंस्ट्रक्शन में क्या है? इट कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव पीस हैविंग द स्मॉल अपर्चर एंड द स्मॉल फोकल लेंथ, हैविंग द स्मॉल अपर्चर एंड द स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर एंड द स्मॉल फोकल लेंथ. व्हाई it is taken small? Note down, it is objective lens is taken small. Objective lens is taken small so that a large amount of light can pass, so that a large amount of light can pass through the smaller area. As a result, bright image could be formed. Bright image could be formed. स्मॉलर इसलिए लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट स्मॉलर एरिया से जाएगी तो ब्राइट इमेज बन सके. एंड आई पीस इज टेकन लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, देन द ऑब्जेक्टिव पीस, so that it can form large aperture, large focal length is taken so that it can form the magnified image of the tiny object. वर्किंग भी लिख लेना. अच्छा, वर्किंग object is placed beyond F, of objective piece. The lenses are adjusted in such a way, then the image
A dash B dash is formed. A dash B dash is formed between the eye lens, between the eye lens and its focus. Eye lens and its focus. Since A dash B dash lies between the focus FP and the eye lens, between the focus FP and the eye lens, therefore the final virtual and magnified image is formed and at the least distance of distinct vision. Virtual and magnified virtual and erect image is formed at the least distance of the distinct vision. Magnified one virtual erect is formed at the least distance of the distinct vision. Here you see, this is the angle range is beta and alpha. मैग्नीफाइंग पावर लिखो, मैग्नीफाइंग पावर. अब देखो ये हमारी है, इसकी फाइनल, इसके लिए तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन इसके लिए वर्चुअल. क्लियर? तो फाइनल हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, और मैग्नीफाइड बन रही है. मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, magnifying power जरा देखना. What is the magnifying power? It can be defined as, note down, magnifying power can be defined as it is the ratio of angle formed by the image and the object. It is the ratio of the angle formed by the image and object at the eye when both are at the least distance of the distinct vision, when both are at the least distance of the distinct vision. Both are at the least distance of the distinct vision. Suppose the object AB is assumed at the least distance of distinct vision. Let it is A triple dash B double dash. जहाँ पे इमेज बन रही है हम assume करते हैं least distance of distinct vision पर from the eye lens. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ए ट्रिपल डैश, इसकी हाइट ए बी के इक्वल है. सपोज इट मेक्स एंगल अल्फा एट द आई एंड द इमेज मेक्स एंगल बीटा एट द आई. देयरफॉर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. इट इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा. 5 मार्क्स में आता है, ध्यान रखना. It is equal to tan beta upon tan alpha. What you see is the tan beta here, A dash B dash tan beta. You can take it is A dash B dash upon E B dash. A dash B dash upon E B dash. Yes sir. जरा हम tan अल्फा की बात करते हैं. A double dash, A triple dash, upon A B dash, B double dash upon E B double dash. Here A dash B dash upon A triple dash B double dash. Here you see, this is equal to
ये तो दोनों इक्वल ना हुआ जी, ई बी डबल डैश माइनस डी, और ये वैल्यू हो जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ई बी डबल डैश में मिल जाता है माइनस डी, और ये वैल्यू हमें मिल जाती है, हमें मैग्निफिकेशन लेना है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश। इसको देखो अच्छा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो जाएगा ई बी डैश इंटू ई बी डबल डैश अपॉन ए बी। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड दिस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ध्यान रखना कि ये वैल्यू इसके इक्वल हमने अज्यूम किया ऑलरेडी, तो इट इज इक्वल टू हियर ई बी डबल डैश अपॉन ई बी डैश। हियर इट इज व्हाट ए बी डबल डैश, इसको एम ओ कहते हैं, मैग्निफिकेशन ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस का मैग्निफिकेशन नहीं है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इज इट क्लियर? इट इज एम ओ। जरा ई बी डबल डैश की बात हम करते हैं। ई बी डबल डैश इज माइनस डी एंड ई बी डैश इज माइनस यू ई, सो इट इज माइनस डी अपॉन माइनस यू ई। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज इक्वल टू एम ओ इंटू, ये इसको एम ई भी कहते हैं, इसको एम ई, वेयर यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर एम ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। क्लियर कर लो, एम ई इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। क्लियर करना, एम ई इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव पीस, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस, डी अपॉन यू ई। फॉर आई पीस, नोट डाउन, फॉर आई पीस u इज इक्वल टू माइनस यू ई, v इज इक्वल टू, मतलब यू इज इक्वल टू माइनस एंड v इज इक्वल टू माइनस डी। आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव पीस माइनस यू ई है, डिस्टेंस कितना है माइनस डी, एंड देयरफॉर f इट इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इट इज 1 अपॉन f। देखना 1 अपॉन v का मतलब माइनस 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। दिस इम्प्लाइज दैट d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस d अपॉन यू ई, इट इज d अपॉन एफ ई। सो व्हाट यू गेट हियर, इट इज d अपॉन यू ई, it is equal to 1 plus d upon f e. Therefore, the final magnification, have you noted it? Yes, sir. So, therefore, the final magnification m is equal to d upon u e के प्लेस पे कितना आया 1 plus d upon f e, 1 plus d upon f e. Therefore, the final magnification m is equal to m o into m e. एम ओ इट इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ई। वी अपॉन यू होता है कि नहीं, वी अपॉन यू ओ, एंड हियर एम ई हमारे पास डी अपॉन एफ ई था ना, दिस कैन बी रिटन एज वी ओ अपॉन यू ओ। डी अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी आई, डी अपॉन एफ ई नहीं, डी अपॉन यू ई था, डी अपॉन यू ई था ना, हाँ यू ई। तो d अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस डी अपॉन एफ पी। तो ध्यान में रखो, ये हमारे पास d अपॉन यू ई के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। दस आवर फाइनल मैग्निफिकेशन m, it is equal to
VO upon UO 1 plus D upon FE, and this is the magnification. VO upon UO it is equal to 1 plus D upon FE. ये डेरिवेशन आता है मैग्निफिकेशन का. When object is close to F, note down, special case. इंफिनिटिव होता है तब ऐसा ध्यान रखना. When object, note down, when object is placed, when object is close to F naught, then image is formed close to the eyepiece. Note down, when object is placed close to F naught, then image is formed. Close to eyepiece. Then what will happen here? You see, then M close to F. ध्यान में एक और रखना, इसके लेंथ, दो लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम L कहते हैं. L मतलब लेंथ है. तो अगर ये इसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर होती, बहुत कम, 1.5 focal length are taken very small. When it is taken very close to this, then what happens? तो इनके बीच की डिस्टेंस को तब हम L मानते हैं. उस केस में जब एकदम करीब हो, इमेज एकदम करीब बनेगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम L मानते हैं, लेंथ L. तो हमारे उस केस में हम इसके बहुत करीब बनेगा, तो लिखेंगे when UO it is equal to minus F naught, then VO it is equal to L. Then M is equal to minus L upon FO 1 plus D upon FE. ये हमारा मैग्निफिकेशन आएगा D upon FE. When special case, when object is close to F. Clear? When object is close to F, then final image is formed here close to eyepiece. ये इसका स्पेशल केस हो गया. और एक होता है when final image is formed at infinity, then what happens? Normal adjustment, relaxed eyes से कैसे देखते हैं? When final image is formed at infinity. तो ये इतना तो समझ में आ गई बात में. ये मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन आता है M is equal to minus L upon FO 1 plus D upon FE. Is it clear? Now when the final image is formed at infinity, फिर डायग्राम दूसरा बनेगा. ये 5 मार्क्स में आता है, क्लियर करना. When final image is formed at infinity, देखो, when final image is formed, final image is formed at infinity. फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगी जब इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव पीस की इमेज जो है उसके फोकस पर जाकर के बने. सो हियर यू सी what happens in this case. Under the diagram, we adjust in such a way
Here focus object is placed here. We adjust in such a way that final image is far at infinity. Objective piece AB है, final image we adjust in such a way that the final image is formed at the infinity. ये फोकस ध्यान रखना, इसके फोकस पे बनेगा डायग्राम देखना। फाइनल जब इसके फोकस पे रखा जाए फाइनल इमेज इंफिनिटी बनेगी और ये हम लिखेंगे ऐसे ही ये देखना फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनेगी। अब देखो इट इज ए बी ए डैश बी डैश फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। इधर आई पीस है हमारे पास, आंख पर इमेज बनती है तो इधर आई पीस है, ये हमारा आई पीस इमेज फाइनल इंफिनिटी पे इंफिनिटी की इमेज देख नहीं पाते, बहुत बड़ी बनती है। तो स्क्रीन लगा दी जाएगी क्या इंफिनिटी की इमेज दिखती ही है, ऐसा नहीं कि इंफिनिटी की इमेज नहीं दिखती। हाँ बहुत बड़ी दिखती, स्क्रीन पे दिखती क्यों नहीं? मतलब ब्राइटनेस बहुत कम रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत बड़ी हो जाएगी दिखेगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। अपने गाड़ी में लाइट बंद होता है उनका भी फोकस रखा तो इंफिनिटी पे जाती है, तो इंफिनिटी का मतलब एकदम इन्फिनिटी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफाइंड होती है। इन्फिनिटी से कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी को नहीं रखा जाता। फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से ज़्यादा डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी यहाँ कह लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, इन्फिनिटी पे। अब हो सकता छोटा सा चार्ज रखा जाए यहीं पर इन्फिनिटी हो, इसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी जो है रेस्पेक्टिव टर्म है। हो सकता है ये अब अगर हम ई जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर को अगर 1,00,000 भी रख दें तब भी डिफाइन नहीं हो सकता जीरो। अगर 1,00,000 किलोमीटर रख दिया जाए तो छोटा सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर सकता 1,00,000 किलोमीटर, लेकिन यहीं पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो सकता है इसका इफेक्ट जीरो। इसके लिए इन्फिनिटी यही है इन्फिनिटी। हाँ क्योंकि बिना इन्फिनिटी टर्म यूज के एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता। यू कांट एक्सप्लेन फायर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी। वही वहाँ जब तक इन्फिनिटी नहीं कहोगे तब तक एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता।
बात समझ में आ रही है ना? तो इन्फिनिटी रेस्पेक्टिव टर्म है, किसके रेस्पेक्ट में कैसे देखा जाता है, और ये हमारा इन्फिनिटी बनता है, ये पैरेलल बीम होती है। ये देखना फाइनल इमेज इट इज बीटा बनती है। इमेज को हम अब यहाँ पे अज्यूम करेंगे, तो मैग्निफिकेशन जरा देखना क्या होता है। मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन it is the ratio of angle formed by the image. It is the ratio of the angle formed by the image at infinity and it is the ratio of the angle formed by the image situated at infinity, लिखना situated at infinity, and the angle formed by the object situated at the least distance of the distinct vision, and the angle formed by the object situated at least distance of the distinct vision at the eye, जो एक इन्फिनिटी पर है और एक जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, दोनों आंख पर जो एंगल बनाते हैं उसी के रेशियो को कहते हैं। सपोज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी को हम अज्यूम करते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसे मिला लेते हैं ए एस। लेट दिस इज अल्फा, हियर इट इज ए डैश, ये तो ए डैश बी डैश हुआ, यहाँ पर हम ऐसे रख लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। कैसे ऑब्जेक्ट वी अज्यूम एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड मैग्निफिकेशन इट इज इक्वल टू एम, इट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, इट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा इज व्हाट? tan बीटा is a dash b dash upon e b dash, a dash b dash upon e b dash. tan alpha is a double dash b double dash upon e b double dash. Therefore a dash b dash m, it is equal to a dash b dash double dash upon e b dash, it is equal to e b double dash upon a double dash b double dash. Is it clear? And this can be written as, after this you see this m is equal to a dash b dash upon a double dash b double dash into e b double dash upon e b dash. This implies that m is equal to a dash b dash upon a b, हमने बताया था यह इसके इक्वल, into e b double dash, that is equal to, this is the least distance of the distinct vision, ये हमारा d है, this is minus d upon e b dash, it is minus ue, it is minus ue. So हमारे पास m is equal to mo into me, और me हमारे पास यहाँ पे d upon ue, me it is equal to d upon ue. अगर for eyepiece, if we consider for eyepiece, u it is equal to minus ue, v is equal to infinity, v is equal to infinity ना, क्योंकि इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे जा रही है। सो 1 upon v
minus 1 upon u, it is 1 upon f, 1 upon infinity, minus 1 upon minus ue, it is equal to 1 upon fe. Therefore, after this, it is 0, minus minus plus, decimal. अभी कुछ एकदम आवाज नहीं निकालना. इट इज 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई. डी से मल्टीप्लाई करो, सो डी अपॉन यू ई इट इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई. इट मीन्स द फाइनल मैग्निफिकेशन यू कैन सी हियर. फाइनल मैग्निफिकेशन हमारे पास एम ओ इंटू एम ई की वैल्यू डी अपॉन यू था. एम ओ को लिख सकते हैं एम ओ इट इज इक्वल एम इज इक्वल टू बी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई की प्लेस पे लिखेंगे डी अपॉन एफ ई. एंड दस दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन. इट मीन्स हियर दिस विल बी, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख कैसे लिखते हैं, वी ओ अपॉन यू ओ नॉट डी अपॉन एफ ई. और यही हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन यम मिल जाता है. क्लियर. और यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू एफ, यहाँ लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू एफ, ऑब्जेक्ट हाँ क्लोज टू एफ, देन यू ओ इट इज इक्वल टू minus f o and v o it is equal to l. And in that case what you get here, in that case your magnification m it is equal to minus l upon f o, l upon f o into d upon f e, d upon f e. तो ये हमारा फाइनल बन जाता है. इज इट क्लियर. तो दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड टेलीस्कोप, डबल लेंसेज.